گڈ مارننگ. اس سیشن میں خوش آمدید. میں ہوں نذیر جان گل. آج کا کلام جو ہے وہ یرمیہ کی کتاب جو ہے صحیفہ جو ہے اس کی 26واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر جو ہے وہ 6 آیت تک جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. 5ویں آیت تک. خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے: شاہ یہودا یاوقیم بن یوسیہ کی بادشاہی کے شروع میں یہ کلام خداوند کی طرف سے نازل ہوا کہ خداوند یوں فرماتا ہے، تو خداوند کے گھر کے صحن میں کھڑا ہو اور یہودا کے سب شہروں کے لوگوں سے جو خداوند کے گھر میں سجدہ کرنے کو آتے ہیں وہ سب باتیں جن کا میں نے تجھے حکم دیا ہے ان سے کہہ دے، ایک لفظ بھی کم نہ کر. شاید وہ سنوا ہوں اور ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے، اور میں بھی اس عذاب کو جو ان کی بادموالی کے باعث ان پر لانا چاہتا ہوں باز رکھوں. اور ان سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میری سنو گے تو میری شریعت پر جو میں نے تمہارے سامنے رکھی عمل کرو گے، اور میرے خدمت گزار نبیوں کی باتیں سنو جن کو میں نے تمہارے پاس بھیجا. میں نے ان کو بر وقت بھیجا پر تم نے نہ سنا. خداوند کے کلام پاک کے وسیلے سے برکت ہو، آمین. ناظرین، یہ خدا کا کلام ہے جس میں خدا یرمیہ نبی سے یوں بیان کرتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو خداوند کے گھر کے صحن میں کھڑا ہو اور یہودا کے سب شہروں کے لوگوں سے جو خداوند کے گھر میں سجدہ کرنے کو آتے ہیں سب باتیں جن کا میں نے تجھے حکم دیا ہے ان سے کہہ دے، ایک لفظ بھی کم نہ کر. دوسری بات یہ ہے، خداوند فرماتا ہے کہ ان سے یہ کہہ دے، ایک لفظ بھی کم نہ کر، کہ خداوند فرماتا ہے کہ تم نے میرے خدمت گزار نبیوں کو جن کو میں نے تمہارے پاس بر وقت بھیجا ہے ان کی نہ سنی. لیکن خدا فرماتا ہے کہ اب جو تو ان سے بات کہنا ہے وہ کہہ دے، ایک لفظ بھی کم نہ کر، اور کہہ دے کہ وہ توبہ کریں اور اپنی بادمالی سے باز آئیں تاکہ میں بھی اس عذاب کو جو ان پر لانا چاہتا ہوں باز رہوں. اور خدا کا کلام جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم خدا کا کلام جماعت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پیش کرنے سے پہلے ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے اوپر اس کا اطلاق کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ جب کلام سنانے والا جو ہے وہ خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو خدا کے کلام کے ساتھ جو ہے وہ متفق کرتا ہے تو پھر خدا جو ہے وہ پلپٹ پر سے جو ہے وہ خدا جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے. یہ بات ہے کہ بہت ضروری بات یہ ہے کہ جو پلپٹ پر آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ اسی طرح پاک ہو جس طرح خدا پاک ہے. وہ اسی طرح خدا سے پیغام حاصل کرے جس طرح پالوس
हासिल करता था, जिस तरह एलिया हासिल करता था, जिस तरह यिर्मयाह हासिल करता था, जिस तरह यसाया हासिल करता था, जिस तरह हिजकियेल जो है वो हासिल करता था। हिजकियेल जो है उसकी जो है जो 20 बाब है, 22वां बाब जो है उस पे पढ़े हैं, उसकी 30वीं आयत जो है, 22वें बाब की 30 आयत जो है, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखने में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला। खुदा के कलाम पाक में ये लिखा है कि मैंने तलाश की कि उस सरजमीन में जो रखना है उसमें वो खड़ा हो, लेकिन कोई ना मिला। तो खुदा जो है वो ये फरमाता है कि अब प्रीचर जो है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि खुदा के सामने आए, खुदा के हुजूर वो खड़ा हो, खुदा के हुजूर में वो रिक्कत अंदेजी से जो है वो लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचाए। पहली बात ये है कि विजन और पैशन दोनों बातों को जो है वो जानना ज़रूरी है। रोया, जहाँ रोया नहीं, लोग जो बेकैद हो जाते हैं, तो अंग्रेजी में ये है वेयर देयर इज नो विजन पीपल आर पेरिश। तो खुदा का कलाम ये फरमाता है कि पहले रोया, मतलब ये है कि खोई हुई रूहों को देखना, वो रूहें जो खुदावंद को नहीं जानती उनको देखना, उन आदमियों की तरफ जो है मुतवज्जो होना, और उन आदमियों के लिए जो है बरंगेख्ता होना, उन आदमियों के लिए जो है वो, उन रूहों के लिए जो है दिल बर्दाश्ता होना, उन रूहों के लिए जो है उनको ऐसी दिलसोजी से कलाम सुनाना कि उनके दिल जो है वो पिघल जाएं। मैं भी आपके सामने ये बात बयान करने की कोशिश कर रहा हूं कि काश के तुम्हारे दिलों में आज मेरी बात उतर जाए, मेरी बात काश के तुम्हारे दिलों में उतर जाए आज मेरी बात। खुदा का कलाम फरमाता है कि यीशु नासरी इसलिए आया ताकि खोए हुओं को ढूंढे और निजात दे। लेकिन पहली बात यह है कि वो जो सुनाने वाले हैं उनको खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने की जरूरत है। पहले उनके साथ मुलाकात, यीशु के साथ मुलाकात करें, फिर जो है वो लोगों के साथ मुलाकात करें। पहली बात यह है खुदा के सामने अपने आप को पेश करना, खुदा से मांगे कि खुदा अपने पाक रूह के वसीले से उसे जलता हुआ पैगाम दे, ताकि खुदा का पाक कलाम जो है वो दिलों के अंदर उतर जाए। जब मैंने कल जो बात कही कि जब मैंने तो खुदा के अजीम खादम की बात जो मैंने पढ़ी, विजन एंड पैशन, रोया और दिल सोजी, तो ये मेरे दिल के अंदर जो है वो बात चली गई। दैट विजन, दैट पैशन, ये दोनों ही बातें जो है वो these two words penetrated into my heart, ये दोनों बातें मेरे दिल के अंदर चली गई। तो ये मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं कि खुदा चाहता है कि खुदावंद यीशु मसीह, खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी यीशु के पास है, क्योंकि वो जिस्म में खुदा मौजूद था। खुदा के कलाम पाक में ये लिखा हुआ है, जो तीमुथियुस का खत जो है उसमें जो है, पहला तीमुथियुस का खत जो है उसमें जो है वो ये लिखा हुआ है कि विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस।
that God was manifested in flesh. खुदा यीशु में मौजूद था, खुदा जिस्म में मौजूद था, यीशु का जिस्म जो है उसमें मौजूद था, और दिल सोजी के साथ जो है वो इन बातों को लेना और दुआओं में वक्त गुजारना, खुदा के साथ मुलाकात करना, ये ज़रूरी बात है कि पहले खुदा के साथ मुलाकात करना, फिर लोगों के साथ मुलाकात करना। देखिए खुदा का कलाम जो है ये फरमाता है कि जो काहिन है वो लोगों की दुआएं जो है वो खुदा के पास वो पहुंचाता है, लेकिन नबी जो है वो खुदा की बातें लोगों तक पहुंचाता है। तो इस वजह से ये बड़ी ज़रूरी बात है। खुदा का कलाम फरमाता है यर्मिया से कि यहूदा के शहरों में से जो लोग खुदा के घर में सजदा करने के लिए आते हैं उनसे सब बातें कह दे, एक लफ्ज भी कम ना कर। तो मतलब ये है कि खुदा ये फरमाता है कि कह दे, जो कुछ भी मैं कहता हूं कह दे, उनसे उन एक लफ्ज भी कम न कर कि मैंने तुम्हें वक्त पर तुम्हारे पास नबियों को भेजा लेकिन तुमने उनकी ना सुनी। और आज भी खुदावन यर्मिया से कहते हैं उनसे कह दे कि आज भी तुम तौबा करो ताकि मैं उस अजाब को जो तुम पर नाज़िल करने वाला हूं बाज रहूं। इस वजह से हिजकिय्याल के बाबत भी यही है कि खुदा ने कहा मैंने देखा कि उस मुल्क को बर्बाद करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन खुदा फरमाता है कि मैंने तलाश की कि कोई आदमी जो है वो शफायत करने वाला हो, रखने में खड़ा हो। ओह हालेलुया। मतलब ये है कि खुदा चाहता है कि कोई ना कोई जो है शफायत करने वाला हो। हालेलुया, वंडरफुल गॉड। खुदावन जो है चाहता है, प्रीचर भाइयों, खुदावन चाहता है कि हम खुदा के हुजूर में खड़े हों, हम खुदा के सामने खड़े हों, हम रखने में खड़े हों, हम लोगों को बताएं कि खुदावन जो है वो रहम करने वाला है। खुदावन फरमाता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। इमाल की किताब में भी यही लिखा हुआ है, तीसरे बाब की 19वीं आयत में, पस रजू लाओ, पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह से खुदा के हुजूर में तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए। यर्मिया तो खुदा फरमाता है जो खुदा के घर में सजदा करने के लिए आते हैं उनको जो बातें मैं कहता हूं उनसे कह दे, एक लफ्ज भी कम न कर। तो इस वजह से खुदा फरमाता है कि अब प्रीचर भाइयों को मैं बयान करता हूं, मैं आपकी मेहनत करता हूं कि आप दुआ में पैगाम को हासिल करें और फिर खुदा का कलाम लोगों के सामने पेश करें। और फिर जो है वो जिस तरह खुदा के कलाम पाक में हमने कल देखा कि पुलपट में अंक्शन है, पुलपट में दिल सोजी है, पुलपट के अंदर जो है वो जानकनी जैसी आवाज है, तो फिर पुलपट के बाद जमात के अंदर जो है वो जुम्बश होती है, जमात के अंदर काम होता है। मतलब ये है अंक्शन इन द पुलपट एंड एक्शन इन द प्यूज। तो मतलब ये है कि खुदा चाहता है कि आप लोगों को खुदा की बात सुनाएं ताकि लोग तौबा करें, ताकि लोग यीशु के पास आए, ताकि लोग जो है खुदावंद को जाने के खुदावंद ही खुदा है। और खुदावंद के कलाम पाक में लिखा है कि जब आप दुआ करते हैं तो जाने कि खुदा आपके साथ है, लेकिन जब आप पहले दुआ में मैसेज को पका लेते हैं, वो तपाया हुआ मैसेज जो रूल कुद्दस की आग के वसीले से आपको मिलता है और आप जो है लोगों तक पहुंचाते हैं, तो जरूर खुदावन जो है वो काम करता है, क्योंकि खुदा जो है वो ये चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। यर्मिया से ये कहा गया कि यहूदा के शहरों में से
जितने भी लोग खुदा के घर में सजदा करने के लिए आते हैं, उनसे जो मैं कहता हूँ कह दे, एक लफ्ज भी कम न कर। और आप भी लोग जो है वो आपके पास आते हैं और खुदा चाहता है कि आप उनको पैगाम वो दे दें जो खुदा चाहता है, एक लफ्ज भी आपको कम नहीं करना चाहिए। खुदावन जो है वो मौजूद है और चाहता है कि हम दिलसोजी के साथ, प्रीचर दिलसोजी के साथ खुदा के पैगाम सुनाना उसका फर्ज बनता है। जिनको खुदा ने बुलाया है उनको खुदा महफूज भी रखता है, जिनको खुदा ने बुलाया है उनके लिए प्रोवाइड भी करता है, जिनको खुदा ने बुलाया है उनके लिए जो है वो उनको दूसरे लोगों की जो है एजार सानियों से भी बचाता है। खुदावन मौजूद है और वो चाहता है जिस तरह यिर्मयाह को उसने कहा, इसी तरह आपके साथ भी वो हम कलाम होता है। और ये इस पैगाम को आप अपने लिए अपने पर जो है वो मुंतकिल करें अपने ऊपर। अब ये जो कहेंगे वो खुदा मुझसे कह रहा है कि ऐ फलां, मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदावन फरमाता है, जान तू यहाँ क्या करता है। एलिया को खुदा ने कहा, एलिया तू यहाँ क्या करता है। तो खुदा जो है वो मुझे कह रहा है, ऐ जान तू यहाँ क्या करता है, ऐ दानियल तू यहाँ क्या करता है, ऐ सुलेमान तू यहाँ क्या करता है, ऐ अमानत तू यहाँ क्या करता है। हर एक से वो कह रहा है कि तू यहाँ क्या करता है। यिर्मयाह को भी ये कहा गया कि जो पैगाम मैं तुझे देता हूँ उन सब से कह दे, एक भी लफ्ज कम न कर। इसी तरह खुदा ने एलिया से कहा कि तू यहाँ क्या करता है। खुदावन का कलाम जो है वो तपाया हुआ, जब रूह कुदस की आग में तपाया हुआ आप लेकर जाते हैं, लोग ज़रूर खुदावन को कबूल करेंगे। फिर ऐसा पैगाम आप देते हैं तो इसी तरह रूहें जो है खुदावन के पास आएंगी। जिस तरह बेरी के पक्के हुए बेर जो हैं वो नीचे गिरते हैं, वैसे ही रूहें खुदावन यीशु मसीह के सामने तौबा करते हुए हाउ हू करेंगी कि मैंने क्या किया, मैंने तो ये करना था और मैं क्या करता रहा। और इस वजह से ज़रूरी बात है कि आप खुदा से पैगाम हासिल करें और उसको दुआ के अंदर जो है वो तपा लें। और तो फिर खुदावन जिस तरह यिर्मयाह से कह रहा है, जिस तरह एलिया से कह रहा है, आपके साथ भी वही बात खुदावंद जो है वो करना चाहता है। तो खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आइंदा भी हम सबको खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। और ज़रूरी बात यह है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें और एक दूसरे के वसीले से बरकत हासिल करें। प्रेज टू जीसस, वंडरफुल गॉड, ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद का नाम आपके वसीले से जलाल पाए, यीशु के नाम में आमीन।